السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہوش اور آپ دیکھ رہے ہیں کاسموپولیٹن۔ ناظرین، کراچی کی ہفتہ بھر کی اہم خبروں میں ماہ ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی اہلیان کراچی کی جشن ماہ میلاد النبی کی بہاریں عروج پر۔ کراچی میں بجلی و پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کے دھرنے ہوں یا وزیر کھیل سندھ کی سندھ پریمیئر لیگ کے دعوے ہوں، فرانسیسی کونسل جنرل سے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کی خصوصی ملاقات ہو یا آسٹریلوی ہائی کمشنر کی ویمن کرکٹ کی تقریب ستائش میں شرکت ہو، کراچی میں ڈاکو گردی سے 100 شہریوں کا قتل عام ہو یا ہلکی بارش میں کے الیکٹرک کے 200 فیڈر ٹرپ ہونے کی دہائی ہو، پانی چوری کے خلاف واٹر بورڈ کا جاری آپریشن ہو یا سیکیورٹی کمپنی ڈرائیور کی کروڑوں روپے لے کر فرار ہونے کی کوشش ہو یا ہو سندھ پبلک سروس کمیشن کی افواہوں کی تردید۔ ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے، ملاحظہ کی جیسی بہت سی خاص خبریں کاسموپولیٹن میں۔ ناظرین، پہلے چلتے ہیں لاہور کی جانب۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاسموپولیٹن کے مکمل احوال کے ساتھ زینب جتوئی۔ نظر ڈالتے ہیں اس ہفتے کی اہم کاسمو ہیڈ لائنز کی طرف۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں آشوب چشم میں اضافہ۔ لاہور چیمبر آف کامرس میں بزنس کمیونٹی سے نگران وفاقی وزیر توانائی اور وفاقی وزیر تجارت کا خطاب۔ پنجاب حکومت کا غریب عوام کو سستا آٹا فراہم کرنے کا فیصلہ۔ اب لاہور کے شہریوں کو ملے گی 24 گھنٹے پولیس کی خدمات۔ لاہور میں کیا گیا گرینڈ ملٹی ڈیزائنرز کی نمائش کا انعقاد۔ بابا گرو نانک کی برسی کی تقریب، سکھوں کی آمد۔ سیف سٹی منصوبہ، لاہور سمیت دیگر شہروں میں 1 سال تعطل کے بعد ہی چالان کا آغاز۔ چین کے شہر ہانگزو میں ایشین گیمز کا میلہ سج گیا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں رضیہ ہمیں بتائیں گی اسلام آباد کی خاص خبریں۔ جی رضیہ۔ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضیہ خان اور آپ کو آگاہ کروں گی اسلام آباد میں رونما ہونے والے اہم واقعات اور خبروں سے۔ تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب۔ بھارت سمیت تمام ہمسایہ ممالک سے پرامن تعلقات چاہتے ہیں نگران وزیر اعظم۔ اسلام آباد میں وقفے سے بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ شہر میں مسلسل بارش نے سردی کی نوید سنا دی۔ مایہ ناز کرکٹر شاہین آفریدی نے زندگی کی نئی اننگز کا آغاز کر دیا۔ قومی کرکٹر رشتہ ازدواج میں بندھ گئے۔ اسلام آباد میں ولیمے کی شاندار تقریب۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی قائد اعظم یونیورسٹی سنڈیکیٹ اجلاس میں شرکت۔ سنڈیکیٹ کا جامعہ میں طلبہ یونین بحال کرنے کا فیصلہ۔ موٹر وے پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ہو جائیں ہوشیار۔ موٹر ویز پر جرمانوں کی شرح میں 200% تک اضافہ کر دیا گیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستانی معیشت سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ الیکشن کے بروقت انعقاد سے پاکستان کی معیشت سنبھل سکتی ہے۔ رپورٹ۔ قیامت خیز بجلی بلوں کے لیے ہو جائیں تیار، نیپرا نے سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی دوبارہ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ جی تو ناظرین، لاہور اسلام آباد کی خاص خبریں تو آپ نے جان لی۔ اب آپ کے پیش خدمت ہے اس ہفتے کی کراچی کی خاص خبریں، لیکن خبروں کی تفصیل سے پہلے پیش خدمت ہے ان خبروں کی ہیڈ لائنز۔ ماہ ربیع الاول کی آمد، کراچی سبز پرچموں اور برقی قمقموں سے جگمگانے لگا۔ شہر کی فضائیں نعتیہ کلام سے گونج اٹھیں۔ بجلی و پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کا کراچی کے 15 مقامات پر بھرپور احتجاج۔ سندھ پریمیئر لیگ سے سندھ میں کرکٹ ٹیلنٹ کو فروغ ملے گا، وزیر کھیل سندھ ڈاکٹر جنید علی شاہ۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی فرانسیسی کونسل جنرل سے خصوصی ملاقات۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان گہرے اور بہترین تعلقات ہیں، آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکسن۔ رواں سال کراچی میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 100 شہری جاں بحق اور ڈکیتی کی 60,000 وارداتیں ریکارڈ ہوئیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے ہلکی اور تیز بارش، کے الیکٹرک کے 200 فیڈر ٹرپ ہو گئے۔ کراچی میں پانی چوری کے خلاف آپریشن جاری، متعدد غیر قانونی ہائیڈرنٹ سیل کر دیے گئے۔ سیکیورٹی کمپنی کا ڈرائیور کیش وین سے 6 کروڑ 35 لاکھ روپے لے کر فرار۔ اور ناظرین، اب وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی بقیہ خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिजा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि माह रबीउल अव्वल के आगाज़ से ही कराची शहर की रौनकें बहाल हो गईं। शहर भर में जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। शहर भर की कुमकुमों से जगमगा उठा। मुख्तलिफ इलाकों, शाहराहों और इमारतों, मसाजिद और घरों को खूबसूरती के साथ बरकी कुमकुमों और सब्ज़ परचमों से सजाया गया है। मसाजिद, तालीमी इदारों और अवामी रिहाइश पर महाफिल मिलाद और मिलाद कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जारी है। मुताद्दिद मकामात पर ज़ियाफ़त मिलाद और न्याज़ का भी खुसूसी एहतमाम किया जा रहा है। पूरा शहर दुरूद व सलाम से गूंज रहा है। मजहबी जमातों, तंजीमों और अंजुमनों ने महाफिल मिलाद और मरकज़ी रैलियों का ऐलान कर रखा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ज़ालिमाना इजाफे, बिजली के भारी बिलों और टैक्सों में कमी न करने, वज़ीरों, आला अफसरान और तबका अशराफिया को दी जाने वाली मराहत और मुफ्त बिजली और पेट्रोल ख़त्म न करने के ख़िलाफ़ मंगल को कराची शहर भर में 15 मकामात पर मोटरसाइकिलें, कारें और दीगर गाड़ियाँ बंद करके एहतजाज किया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम उर रहमान शाराए फैसल पर होने वाले एहतजाज में शरीक हुए और खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कौम को बेवकूफ़ ना बनाएं। वो कहते हैं कि मेरे पास इख्तियारात नहीं हैं कि पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम कर सकूं। हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए। हालात इस कदर संगीन हो गए हैं कि लोग खुदकशियां करने पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुक्मरान आवाम के जज्बात से न खेलें। निगरान हुक्मरान फौरी तौर पर पेट्रोल और बिजली की कीमतों को कम करें, इंतखाबात करवाएं और घर चले जाएं। हाफिज़ नईम उर रहमान ने कहा कि अगर अवामी मसाइल का फिलफौर हल ना निकाला गया तो हम अवाम के साथ मिलकर हुक्मरानों का रास्ता रोकेंगे और उनकी साजिशों को नाकाम बनाएंगे। अवाम स्ट्रीट क्रिमिनल के निशाने पर हैं। इनको अय्याशिया चाहिए, इनको पेट्रोल फ्री चाहिए, इनको बिजली फ्री चाहिए, इनको मराहत चाहिए, और ये वो तबका है जिसने 76 साल से हमें लूटा है। उन्होंने कहा कि आज 15 मकामात पर सड़कें बंद की और एहतजाज किया गया। अगले मरहले में कराची के अवाम 100 मकामात पर गाड़ियां और शहर की सड़कें बंद करेंगे। कराची के निजी होटल में सिंध प्रीमियर लीग के इनेकाद के सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब से सूबाई वज़ीर खेल सिंध डॉक्टर सैयद जुनेद अली शाह ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सिंध प्रीमियर लीग 14 से 25 दिसंबर तक होगी। किसी भी काम को शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। सिंध प्रीमियर लीग का शुरू होना वाकई खुश आइंद बात है। उन्होंने कहा कि पहले कायदे आज़म ट्रॉफी जैसे इवेंट एक मौसर प्लेटफॉर्म हुआ करते थे। कुछ लोग मेहनत के बावजूद आगे नहीं आ पाते और थोड़ी सी मेहनत से नुमाया हो जाते हैं। हर किसी को यकसा मौके नहीं मिल पाते थे, मगर इस तरह की लीग्स होने से नौजवानों को मौका मिलेगा। खेल के इवेंट साल में एक बार ज़रूर होने चाहिए। वज़ीर खेल सिंध ने कहा कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत ने स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर दिया है। हमें इन सहूलियात से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। हुकूमत का यही काम होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, लेकिन बाकी काम खेलों के फ़रोग़ के इदारों को करना है। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर से फ्रांस के कौंसल जनरल ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफाक किया गया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सकाफ़ती और हायर एजुकेशन में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ है। कौंसल जनरल का कहना था कि अलायंस फ्रांसिस कराची में फ़्रेंच सिखाई जाती है। मास्टर्स प्रोग्राम फ्रांस में दीगर ममालिक से सस्ते हैं। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा कि फ्रांस के मास्टर्स प्रोग्राम के हवाले से अपनी यूनिवर्सिटीज़ को आगाह करेंगे। हम तालीम की तरक्की के लिए इक़दाम कर रहे हैं। नेशनल स्टेडियम कराची में मुनक्किदा गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट की तकरीब तकसीम इनामात के मौके पर पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉक्सन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान गहरे और बेहतरीन ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के आवाम क्रिकेट को बेहद पसंदीदगी की निगाह से देखते हैं। खुशी की बात यह है कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ख़वातीन को बराबरी की बुनियाद पर हुकूक मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अमर काबिल तहसीन है कि अक़वाम मुत्तहिदा और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ख़वातीन के मसावी हुकूक के लिए कोशा हैं। हमारी भी कोशिश है कि सिनफ़ी मसावात को फ़रोग़ दिया जाए और पाकिस्तान में वुमेन क्रिकेट के ज़रिए लड़कियों को बाख्तियार बनाया जाए। दिसंबर में दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पसीराई मिलेगी। साबिक टेस्ट कप्तान जावेद मियादाद मेहमान एजाज़ी थे।
कराची में जारी डाकू राज के दौरान डाकुओं की फायरिंग का निशाना बनकर जख्मी और जिंदगी से महरूम होने का सिलसिला थम न सका। रवा साल शहर कायद में दौरान डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल किए जाने वाले शहरियों की तादाद 100 हो गई, जबकि सैकड़ों शहरी डाकुओं की फायरिंग का निशाना बन गए। जनवरी में बेरहम डाकुओं ने मुज़ाहमत पर फायरिंग करके 13 शहरी, फरवरी में 12 निहत्ते शहरी, मई में 15 शहरी, जून में 9 शहरी, जुलाई में 12 शहरी, अगस्त में 8 शहरी और रवा माह सितंबर के 20 रोज़ में निहत्ते शहरी डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल किए जा चुके हैं। बेरहम डाकुओं के हाथों जाँ बहक को ज़ख्मी होने वालों में ख़वातीन, बाप, बेटे, मासूम बच्चे, बुजुर्ग और पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। ज़राए CPLC के मुताबिक रवा साल शहर कायद में अब तक स्ट्रीट क्राइम्स की 60,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। महकमा पुलिस की जानिब से स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों पर काबू पाने और रोकथाम में ताहल कोई बेहतर हिकमत अमली अपनाने में नाकाम दिखाई देते हैं। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बुध को वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। दूसरी जानिब सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक भी जैम हो गया। बारिश के बायस फिसलन से मोटरसाइकिल सवारों के ज़ख्मी होने के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। बारिश के साथ ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी गायब हो गई। बारिश के बायस के इलेक्ट्रिक के 200 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए। बाज़ इलाकों में रात गए बिजली बंद होने की इत्तलात मिलती रही। कराची में पानी चोरी करने वाले 150 से ज़ायद गैर कानूनी हाइड्रेंट्स चल रहे हैं। पानी के बहरान पर काबू पाने और पानी चोरी करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाइयों के लिए वाटर बोर्ड, पाकिस्तान रेंज सिंध और इंतज़ामिया की जानिब से शहर भर में ऑपरेशंस का आगाज़ कर दिया गया है। ऑपरेशंस के दौरान मरहलावार गैर कानूनी हाइड्रेंट सील करने का सिलसिला जारी है। 75 अफराद गिरफ्तार और 87 टैंकर जब्त कर चुके हैं। 70 FIR कटवाई गई, जबकि कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स के अक्सर मालिकान फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। कराची वाटर एंड कॉरपोरेशन एक्ट के तहत अब गैर कानूनी हाइड्रेंट चलाने पर 5 साल कैद की सज़ा और भारी जुर्माना आयद कर दिया गया है। कराची कोरंगी सनती एरिया से निजी सिक्योरिटी कंपनी का ड्राइवर कैश वैन लेकर फरार हो गया, जिसमें 6 करोड़ 35 लाख रुपए थे। बाद अज़ा कैश वैन अवामी कॉलोनी से लावारिस हालत में खड़ी मिली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सिक्योरिटी गार्ड को छोड़कर कैश वैन लेकर फरार हुआ। अवामी कॉलोनी के इलाके से मिलने वाली गाड़ी को पुलिस ने तहवील में लेकर वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। कैश वैन का ड्राइवर अपने साथियों के साथ कार में फरार हुआ। वाक़े से मुताल्लिक़ और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मज़ीद तहकीकात कर रही है। जी तो नाजरीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की अहम खबरें। नाजरीन, अब चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाए। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब में अशोबे चश्म कंट्रोल से बाहर होने लगा। ये मौसमी बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स में फौरी मुंतकिल हो जाती है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 30 रोज़ के दौरान सूबा भर से 50,000 केसेस सामने आए हैं। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में रवा माह 3100 से ज़ायद मरीज़ रिपोर्ट हुए। देखिए यूसुफ अब्बासी की ये रिपोर्ट। तो बताते हैं कि निगरान वफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा है कि रातों रात एनर्जी की कीमतें कम करना मुमकिन नहीं। IMF प्रोग्राम के अंडर हैं और देखभाल कर कर इक़दामात उठाना होंगे। वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि डॉलर की उड़ान स्मगलिंग रोकने के लिए अफगान ट्रांजिट रेट की सख्ती से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्रैकडाउन के अच्छे नतायज बरामद हुए और डॉलर की कीमत नीचे आई। वफाकी वज़रा ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब किया। मजीद बता रहे हैं आमिर नवीद चौधरी। निगरान वफाकी वजीर बराए तवानाई मोहम्मद अली का कहना है, रातों रात एनर्जी की कीमतें कम करना मुमकिन नहीं। बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन जारी है और सिर्फ 10 रोज में 6 अरब रुपए रिकवर किए गए हैं। जल्दी हम अनाउंस कर देंगे गैस की प्राइस में क्या चेंजेस कर रहे हैं। तो कोशिश ये है कि जो लोअर इनकम तबका है उसके ऊपर बर्डन ना पड़े। वफाकी वजीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा, डॉलर की बढ़ती कीमत की एक बड़ी वजह अफगान ट्रांजिट ट्रेड भी है। सख्ती से निगरानी की जा रही है ताकि डॉलर की कीमत ना बढ़े। ट्रांजिट रूट के थ्रू बहुत सारा सामान आ गया। जब हमने स्टडी किया तो पता चला कि $4 बिलियन का अफगान ट्रांजिट बढ़ के $6.5 बिलियन।
लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर ने कहा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात में स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया था, जिसके बहुत मस्बत माशी नताइज बरामद हुए। SIFC का क़याम भी बहुत अच्छा इकदाम है, जिससे डिफेंस, IT, एग्रीकल्चर, माइनिंग्स एंड मिनरल्स और एनर्जी के शोबे में दोस्त ममालिक से सरमायाकारी का हसूल मुमकिन हो सकेगा। लाहौर चैम्बर के सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी, नायब सदर अदनान खालिद भट्ट, लेस्को चीफ शाहिद हैदर, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय मोहम्मद असगर, मैनेजिंग डायरेक्टर SNGPL आमिर तुफैल समेत दीगर अहम ओहदेदार भी इस मौका पर मौजूद थे। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। पंजाब की आवाम के लिए खुशखबरी, निगरान पंजाब हुकूमत ने आटे पर गर्दिशी कर्जे उतारने और आवाम को आटे पर सब्सिडी फराहम करने का फैसला किया है। देखिए रिजवान आसिफ की ये रिपोर्ट। निगरान पंजाब हुकूमत का 15 बरस से गंदम आटा सब्सिडी की मद में वाजिबुल अदा 600 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा उतारने के बाद अहम फैसला। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम समेत दीगर सरकारी फलाही प्रोग्राम्स में रजिस्टर्ड मुस्तहिक खानदानों को सस्ते आटे की खरीदारी के लिए कैश सब्सिडी फराहम की जाएगी। गंदम के ज़खायर मौजूद हैं, सरकारी ज़खायर हमारे पास, पब्लिक स्टॉक्स भी अच्छी तादाद में मौजूद हैं और बल्कि ये भी सोचा जा रहा है कि शायद कुछ 5 लाख के करीब मेट्रिक टन हम गंदम और मंगवा लें। निगरान हुकूमत ने सरकारी गंदम आटे पर दी जाने वाली जनरल सब्सिडी खत्म करके फ्लॉर मिल्स को लिबरल रिलीज पॉलिसी और मार्केट प्राइस के करीब तरीन सरकारी कीमत पर गंदम इजरा करने पर भी वर्किंग शुरू कर दी है। इम्पोर्टेड वीट भी आ रही है, उसके साथ साथ मार्केट में सरप्लस वीट पड़ी हुई है, तो हुकूमत जो भी रेट देगी, लाइक हम समझते हैं कि 41-42 रुपया रेट होना चाहिए, ताकि ये प्राइवेट स्टॉकर के पास पड़ी हुई वीट है उसका भी रेट नीचे आ जाएगा। मुस्तहिक अफराद को बराह रास्त कैश सब्सिडी देने और फ्लॉर मिल्स को लिबरल पॉलिसी के तहत ओपन मार्केट से करीब तर कीमत पर सरकारी गंदम की फरोख्त से मसाइल और करप्शन का खात्मा मुमकिन है। लाहौर के शहरियों को अब मिलेगी 24 घंटे पुलिस की खिदमत। IG पंजाब ने तमाम सहूलियात से आरास्ता जदीद तर्ज का पुलिस खिदमत मरकज़ लिबर्टी लाहौर में मुतारिफ करवा दिया। पुलिस खिदमत मरकज़ में मुख्तलिफ नौइयत के मसाइल के हल के लिए 30 काउंटर्स बनाए गए हैं। DIG ऑपरेशन सैयद नासिर रिजवी तमाम ऑपरेशन की खुद निगरानी करेंगे। इन सहूलियात के बारे में बता रहे हैं साकिब सलीम भट्ट। ये है जदीद सहूलियात से आरास्ता लाहौर पुलिस का खिदमत मरकज, जहां पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, वेरिफिकेशन, गुमशुदगी रिपोर्ट, FIR की कॉपी, कानूनी रहनुमाई बराए खवातीन, किराएदारी का इंदराज, लर्नर और बैनुल-अक़वामी ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल, तजदीद समेत मेडिकल लीगल रिपोर्ट समेत 30 सहूलियात एक छत तले लाहौरियों को फराहम की जा रही हैं। DIG ऑपरेशंस लाहौर सैयद अली नासिर रिजवी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। वो तमाम चीज़ें जो पुलिस स्टेशन या कई ऐसे दफातर में, जो कि अगर इसको गिना जाए तो 14 दफातर 14 ऑफिसेज में जो चीज़ें मिलती थीं, जो चीज़ें यूटिलिटी, पब्लिक यूटिलिटी की तमाम चीज़ें थीं, वो अब एक छत के नीचे, एक पूरी कंसेप्ट है जो एक छत के नीचे तमाम अवेलेबल हैं। खिदमत मरकज में शहरी टोकन लेने के बाद AC लगे बेहतरीन माहौल में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। पुलिस खिदमत सेंटर की इंचार्ज ASP गुलबर्ग सईदा शहर बानो हैं, जो किसी शहरी को दरपेश मसाइल के हल के लिए हर वक्त मौजूद होती हैं। मैं यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट के लिए आई थी, तो यहाँ का माहौल देख के इतना अच्छा लगा। लास्ट टाइम भी आई थी, लेकिन अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहले भी मैं आज तो अपना लाइसेंस रिन्यू करवाने आया हूँ। पहले आया था, पहले इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी, मगर आज जब मैं आया हूँ तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी उन्होंने चेंज कर दिया है और अंदर भी लोग काफ़ी अच्छे बैठे हुए हैं। इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि लिबर्टी स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विस डिलीवरी सेंटर पायलट प्रोजेक्ट है जो पंजाब भर में कायम किए जाएंगे। लाहौर में हुआ ग्रैंड डिज़ाइनर्स का एग्जीबिशन, जिसमें मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स ने अपने मलबूसात के ब्रांड को मुतारिफ करवाया। नुमाइश में फैमिलीज़ के अलावा दीगर अफराद ने शिरकत की और इस नुमाइश को खूब सराहा। एग्जीबिशन में जदीद रुझान के मुताबिक नए ब्रांड्स मुतारिफ कराए गए। नुमाइश में मुख्तलिफ किस्म के खाने पीने की अशिया, कपड़ों, ज्वेलरी, बर्तन, डेकोरेशन के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। मुंतज़मीन का कहना था नुमाइश का मकसद मुख्तलिफ ब्रांड्स को सार्फिन में मुतारिफ करवाना है। यहाँ पे 100+ ब्रांड्स हैं जिन्होंने हमें हमारे साथ बुकिंग कराई है। मेन एम इस इवेंट का ये है कि हम विमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करें।
नुमाइश में फैमिली समेत दीगर अफराद ने शिरकत की और नए ब्रांड्स में दिलचस्पी का इजहार किया। नुमाइश में आए शहरियों का कहना था कि इस तरह की नुमाइश से बहुत कुछ जानने को मिलता है और ये हमारे लिए फ़ायदा मंद है। ना सिर्फ ख़रीदार के लिए आसानी है क्योंकि एक ही जगह सारी वैरायटी मिल जाती है, बल्कि जिन्होंने स्टॉल्स लगाए हैं उनके लिए भी बड़ी आसानी है। काफ़ी अच्छी एग्जीबिशन है, फुटफॉल काफ़ी अच्छा है, अवेयरनेस ब्रांड्स को, स्मॉल ब्रांड्स को, स्टार्टअप्स को बहुत अच्छी मिल रही है। नुमाइश में पेश किए गए ब्रांड्स लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। नाजरीन, आपको बताएं कि करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 484वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात भारत समेत दुनिया भर से आए सिखों ने मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई। बाबा गुरु नानक जी की पैदाइश ननकाना साहब में 15 अप्रैल 1469 में हुई। बाबा गुरु नानक सिख मत के बानी और 10 सिख गुरुओं में पहले गुरु थे। बाबा जी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 18 बरस करतारपुर में ही गुजारे। दरबार करतारपुर पाकिस्तान में सिखों का दूसरा मुकद्दस मकाम है जो भारतीय बॉर्डर से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। बाबा गुरु नानक 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में दुनिया का भरा मेला छोड़कर रुखसत हो गए। करतारपुर में आए सिख यात्रियों के लिए वसी लंगर और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए थे। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। लाहौरी हो जाएं होशियार। पंजाब में लाहौर समेत दीगर शहरों में सिस्टम की खराबी की वजह से ई चालान का सिलसिला बंद कर दिया गया था। अब सेफ सिटीज़ में 1 साल तातुल के बाद ई चालानिंग का आगाज़ कर दिया है। MD सेफ सिटीज़ के मुताबिक शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर कैमरों की मुरम्मत और इनकी बहाली का काम जारी है, जबकि स्टाफ ने भी वर्किंग शुरू कर दी है और पीर से ई चालान की डिलीवरी का आगाज़ भी कर दिया जाएगा। MD सेफ सिटीज़ ने बताया कि शहर की अहम शाहराहों पर 1000 से ज़ायद कैमरे नस्ब हैं और अगले माह के दौरान ई चालानिंग के तमाम कैमरे फ़ाल हो जाएंगे। नाजरीन, आखिर में आपको बताएं कि चीन के शहर हांगझो में एशियन गेम्स का मेला सज चुका है, जिसमें पाकिस्तान का 262 रुकनी दस्ता भी शरीक है। कौमी दस्ते की वेलकम तकरीब एथलीट्स विलेज में हुई। एथलीट्स और मुंतजमीन अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरजोश नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान 24 खेलों में हिस्सा ले रहा है। गुज़िश्ता एशियन गेम्स में पाकिस्तान ने 4 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते थे। इस बार ज़्यादा मेडल्स की उम्मीदें वाबस्ता की गई हैं, बता रहे हैं यूसुफ अंजुम अपनी इस रिपोर्ट में। नाजरीन, ये था लाहौर का अहवाल। मुझे दीजिए इजाज़त। आपको इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से कामयाब इजलास मुनक़्क़िद करवाने पर अक़वाम मुत्तहिदा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत समेत तमाम हमसाया ममालिक से पुरअमन ताल्लुकात चाहता है। अपने खिताब में अनवारुल हक काकड़ ने दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी बरादरी से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा भी किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में मज़ीद क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत दम तोड़ गई। शहर में ठंडी हवाओं के साथ बारिश ने सर्दी की आमद की नवीद सुना दी। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई। ठंडी हवाओं ने मौसम मज़ीद खुशगवार बना दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदो नवा में वक्फे से मज़ीद बारिश का भी इम्कान है। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। कौमी क्रिकेट टीम के मायानाज फास्ट बाउलर शाहीन शाह आफरीदी रिश्ते अज़दवाज में बंध गए। शाहीन शाह आफरीदी की शादी साबिक़ कौमी क्रिकेटर शाहिद खान आफरीदी की साहबजादी के साथ हुई। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में वलीमे की तकरीब मुनक़्क़िद हुई। तकरीब में मौजूदा कौमी क्रिकेटर्स के हमरा साबिक़ा क्रिकेटर्स ने भी शिरकत की। इसके अलावा सहाफ़ी, सियासी रहनुमा, सिफारतकारों समेत साबिक़ आला फ़ौजी अफसरान भी तकरीब में शरीक थे। तकरीब की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, वाइस चांसलर प्रोफेसर नियाज़ अहमद की ज़ेर सदारत कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट इजलास में शरीक हुए। काजी फ़ाइज़ ईसा ने सिंडिकेट इजलास में बहैसियत रुकन शिरकत की। चीफ जस्टिस ने जामिया में असला बरदार पुलिस, रेंजर्स और सिक्योरिटी की मौजूदगी पर नाराज़गी का इज़हार किया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि तलबा यूनियन गैर जमाती फ़िरकावारियत और लसानी तकसीम से पाक हों और यूनिवर्सिटी को असला व मंशियात से पाक रखें। इजलास के बाद सिंडिकेट ने यूनिवर्सिटी में तलबा यूनियन बहाल करने का फ़ैसला कर लिया।
آگے بڑھتے ہیں اور نظر ڈالتے ہیں اگلی خبر پر۔ نیشنل ہائی ویز اور موٹر ویز پر جرمانوں کی شرح میں 200% تک اضافہ کر دیا گیا۔ ٹریفک خلاف ورزیوں کے 32 کوڈز کے جرمانوں کی شرح میں اضافہ کیا گیا۔ ریوائز جرمانے کی شرح شیڈیول 12 کے تحت عمل میں لائی گئی ہے، جس سے 7 نئی ٹریفک خلاف ورزیوں کے کوڈ بھی شامل کیے گئے ہیں۔ نئی شرح کے تحت جرمانوں کا اطلاق 1 اکتوبر سے ہوگا۔ اوور سپیڈنگ پر اب 750 روپے کے بجائے 2500 روپے جرمانہ ہوگا۔ بغیر لائسنس گاڑی چلانے پر 750 روپے کے بجائے اب 5000 روپے جرمانہ عائد ہوگا۔ اس سلسلے میں مکمل تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر جرمانوں کی شرح میں بڑا اضافہ، 7 نئے کوڈ بھی شامل کر لیے گئے۔ ایکسپریس نیوز کو دستیاب دستاویز کے مطابق اوور سپیڈنگ پر اب 750 کے بجائے 2500 روپے جرمانہ ہوگا۔ غلط اوورٹیکنگ پر 300 روپے کے بجائے 1500 روپے جرمانہ ہوگا۔ دوسری گاڑی کو راستہ نہ دینے پر جرمانہ 300 روپے سے بڑھا کر 1000 روپے کر دیا گیا۔ بغیر لائسنس گاڑی چلانے پر 750 کے بجائے اب 5000 روپے جرمانہ ہوگا۔ ایمرجنسی سروس وہیکل اور ایمبولینس کو راستہ نہ دینے یا رکاوٹ ڈالنے پر جرمانہ 500 سے بڑھا کر 5000 روپے کر دیا گیا۔ رات کے وقت مناسب لائٹ کے بغیر گاڑی چلانے پر جرمانہ 1000 سے بڑھا کر 5000 روپے ہوگا۔ سڑک کی رانگ سائڈ پر گاڑی چلانے پر 500 کے بجائے 2500، غفلت سے ڈرائیونگ کرنے پر 300 کے بجائے 1500 روپے جرمانہ ہوگا۔ سٹاپ سائن پر نہ رکنے پر 500 کے بجائے 3000 روپے، دوسری گاڑی سے انتہائی قریب رہتے ہوئے ڈرائیونگ کرنے پر 300 کے بجائے 1000 روپے جرمانہ دینا ہوگا۔ گاڑی کی پچھلی سکرین مکمل یا جزوی طور پر کور کر کے ڈرائیونگ کرنے پر اب 7000 روپے جرمانہ ہوگا۔ گاڑیوں کی قطار کو جم کر کے آگے نکلنے پر جرمانہ 1000، لائٹنگ کے اوقات پر عمل درآمد نہ کرنے پر جرمانہ 500 سے بڑھا کر 1000، ٹریفک میں رکاوٹ ڈالنے پر 2000 روپے جرمانہ دینا ہوگا۔ سلو سائن پر عمل درآمد نہ کرنے پر 2000، لین تبدیل کی خلاف ورزی پر جرمانہ 1000، غفلت سے ڈرائیونگ کرنے پر جرمانہ 1500 روپے ہوگا۔ انفٹ گاڑی چلانے پر جرمانہ 500 سے بڑھا کر 1250 روپے، شور کرنے والی گاڑی چلانے، غلط یو ٹرن لینے پر 1000، پل پر گاڑی پارک کرنے پر 750 روپے جرمانہ ہوگا۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے 7 نئے ٹریفک کوڈ بھی پہلی دفعہ شامل کیے گئے، جن میں غیر مجوزہ گاڑیوں پر پولیس یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ریوالونگ لائٹ وغیرہ لگانے پر 5000 روپے، سیٹ بیلٹ باندھے بغیر ڈرائیونگ اور دیگر افراد کے سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کی خلاف ورزی پر 1500 روپے جرمانہ ہوگا۔ اسی طرح دوران ٹریفک موبائل فون استعمال کرنے پر 500 اور گاڑی کے شیشے کالے کرنے پر 1000 روپے جرمانہ ہوگا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کی معاشی حالت کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ الیکشن سے پاکستان کی معیشت سنبھل سکتی ہے۔ عام انتخابات سے پاکستان کی معیشت کو اعتماد ملے گا۔ رپورٹ میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ الیکشن نہ ہونے کی صورت میں آئندہ مالی سال میں پاکستان کو مہنگائی اور معاشی مشکلات کا سامنا رہے گا اور روپے کی قدر میں کمی کے باعث مہنگائی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے معاشی حالات کے حوالے سے آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ الیکشن سے پاکستان کی معیشت سنبھل سکتی ہے۔ عام انتخابات سے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ متوقع ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پیش گوئی کی ہے کہ مالی سال 2024 میں پاکستان کو مہنگائی اور معاشی مشکلات کا سامنا رہے گا۔ توانائی کی نرخوں میں اضافے اور روپے کی قدر میں کمی کے باعث مہنگائی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے اس مالی سال میں مہنگائی کی مجموعی شرح 25% تک رہے گی۔ رپورٹ کے مطابق موجودہ مالی سال معیشت کی شرح نمو 1.9% رہنے کی توقع ہے۔ مستحکم گروتھ کے لیے اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآمد ضروری ہے۔ مالی نظم و ضبط، مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ، پاور سیکٹر اور حکومتی مالکیتی اداروں میں اصلاحات ضروری ہیں۔ کنٹری ڈائریکٹر ADB کا کہنا ہے پاکستان کا معاشی استحکام مستقل پالیسی اصلاحات سے جڑا ہے۔ پاکستان کے لیے زیادہ سے زیادہ مالیاتی نظم و ضبط، مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ اہمیت رکھتا ہے۔ ADB نے توانائی شعبے اور دیگر سرکاری اداروں میں تیز اصلاحات پر زور دیا ہے۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے بجلی صارفین کو زوردار جھٹکا دیتے ہوئے سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 3 روپے 28 پیسے مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ نیپرا نے بجلی میں اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد اضافے کا اطلاق ہو جائے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اضافہ گزشتہ مالی سال کی چوتھی سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے، جس کے تحت صارفین کو 6 ماہ میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی
اور 159 ارب کا اضافی بوجھ صارفین کو اٹھانا پڑے گا۔ یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔